آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر ہی صحیح سنجیدگی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، چونکہ یہاں معلوم ہوا آنے کے بعد کہ آبادی ایسی نہیں ہے، بس دو چار گھر ہے، تو ہمیں اور آپ کو ہی اس محفل کو آگے لے چلنا ہے اور اختتام تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سوتا رہے گا، کوئی گھومتا رہے گا، تو اس سے اچھا رہتا کہ کیسٹ لگا دیا جائے اور کیسٹ بجتا رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جب تک بھی بیٹھے رہیں ادب کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور بیدار ہو کر بیٹھے رہیں۔ میں کچھ دوسرا سوچا تھا، لیکن اب اس ماحول میں چونکہ تقریر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ بیدار لوگ رہیں، تقریر ہو، کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، اسے بغور سماعت کریں گے آپ۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، سلام اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مذہب اسلام میں ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی بھی زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک گوشوں پر ہمارے لیے ایک ایگزامپل نمونہ موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی گوشہ ہو، ہر ایک طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اگر ہم اس نمونے، اس اسوہ سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو گر اسی میں خامی ایمانہ مکمل ہے، ہو گر اسی میں خامی ایمانہ مکمل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مذہب اسلام اور سنت رسول پہ چلنے کی کوشش کرتے رہیں۔
मौजूए सुखन आज का जो आपको सुनना है, वालिदैन की अजमत पे थोड़ी देर गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला जहां अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है, वहीं वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का भी हुक्म दिया गया है। इससे अंदाजा ये लगता है कि माँ बाप का मर्तबा कितना बुलंद अल्लाह ने रखा हुआ है। अल्लाह और रसूल के बाद अगर मर्तबा है तो वो माँ बाप का मर्तबा हुआ करता है। हमारे लिए माँ बाप बहुत कुछ करते हैं जिंदगी तक, जब तक सांस रहती है। कहा गया है कि दरख्त अगरचे बूढ़ा हो जाए, फल न दे, लेकिन वो साया जरूर दिया करता है। इसीलिए जब तक माँ बाप रहते हैं, औलाद चाहे मालदार हो, ताकतवर हो, आशियाना बना ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे एक भरोसा रहता है, एक ताकत अलग मिला करती है। और उसी वालिदैन को आज हम और आप दुनिया की रंगीनियां और दूसरे मज़ाहिब के तरीके को लेकर के उस तरह खिदमत नहीं कर पाते हैं जो हमें खिदमत का हुक्म दिया गया है। इसलिए हमें और आपको बस थोड़ी देर वालिदैन की अजमत पे सुनना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें ये सुनहरा मौका है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं उस वक्त तक खिदमत का हमें मौका है। और अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी हमें और आपको अता फरमाई कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है और बाप को जन्नत का दरवाजा फरमाया गया है। अब यही से आप समझ लीजिए कि अजमत कितना है, जो जन्नत कहाँ है। उस जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे और बाप के पेशानी पे रख दिया है। हम उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ बाप की अजमत क्या होती है। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना, अपने रब की इबादत करो, यह हुक्म दिया गया है, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। तो हमारे लिए बेहतरीन चीज क्या है कि दुनिया में जब तक है माँ बाप, हम उनकी खिदमत करके भी सवाब हासिल कर रहे हैं, हम उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर रहे हैं, हम उनकी खिदमत करके, माँ बाप की खिदमत, बाप हो जन्नत का दरवाजा फरमाया गया है। और मजहब इस्लाम में इंतकाल हो जाने के बाद भी अपने नामा आमाल में जब एक लड़का उनके लिए इसाले सवाब करता है तो उनकी जानिब से भी दुआएं आती है, अल्लाह रसूल भी राजी हुआ करते हैं। ये सारी चीजें मजहब इस्लाम की खुसूसियत होती है, उसके अलावा कहीं भी खुसूसियत नहीं मिला करती है। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। रखे तू वीडियो और कब, ये भी कुरान में बताते, कब ज्यादा जरूरत पड़ती है वो भी देखे। इंसान 40-50 साल की उम्र जब रहती है, ताकत जिस्म के अंदर होती है, उस वक्त नहीं समझता है, उस वक्त इंसान को जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुरान ने क्या फरमाया है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, बुजुर्ग हो जाए, उनमें से एक या दोनों, तो अब क्या करें हम, जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, एक हो या दोनों, तो क्या करें। अल्लाह अल्लाह, फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ तक न कहो। अगर माँ बीमार है, बाप बीमार है, दवा लेने के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ हाजत के लिए अगर नौजवान लड़के से अपने वो फरमा रहे, कह रहे हैं, तो ऊह न करो, क्यों अभी टाइम नहीं है, आप इस तरह बोलते हैं। नहीं, कुरान फरमा रहा है, जिसका इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। तो कुरान ने फरमाया है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पड़ा करती है, सबसे ज्यादा जरूरत है जब बुढ़ापे को पहुंचे, उस वक्त जो है, चाहे एक उनमें से हो या दोनों हो,
उस वक्त उफ भी जुबान पे न कहो, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़को भी न। आज देखिए झिड़कना भी है। आयत करीमा में ये नहीं फरमाया गया कि वालिदैन हाफिज कुरान हो तब उनकी अजमत का बयान हुक्म दिया गया, कारी कुरान हो तब अजमत का, मुफ्तियान दीन हो या औलिया में कोई भी नहीं, बल्कि महज माँ बाप होने की हैसियत से उनकी ये अजमत कुरान में बयान फरमाई, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। मरहूम सूफी अब्दुल नासिर साहब अक्सर जिंदगी में कभी कभी बैठा करते, बातचीत होती थी, बहुत सारी बातें होती थी, और वाकई इनके लड़कों ने भी अपने वालिदैन की खिदमत किया है, और उसी का नतीजा है कि आज जहां आबादी नहीं है वहां पे भी माशाअल्लाह सालाना कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, और उनके लिए अच्छी बात कहो, भलाई की बात करो, ताकि दिल को ठेस न पहुंचे। आइए एक बात बताता हूं मैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वो शख्सियत थी, और सवारा किसने था? मां ने सवारा था। एक मर्तबा लोगों ने पूछा, हुजूर आपको ये मर्तबा, ये मकाम कहां से मिला है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मां की दुआ की बरकत से मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी वो है कि एक मर्तबा शहर बुस्तान में नहुसत फैल जाती है, बेबरकती नजर आती है। उसकी वजह क्या है? एक तवाइफा आ जाती है, एक बदकार औरत आ जाती है, गुनाहों का बाजार गर्म कर लेती है। अब रोजाना और सुबह सुबह नौजवान जितने हैं गली कूचे से चले जाते हैं, दरवाजे पे भीड़ हो जाती है। अब यहाँ तक के लोगों ने आकर के कहा, हुजूर उस बदकार औरत की वजह से, तवाइफ औरत की वजह से बहुत ज्यादा बेबरकती हो रही है, शहर में नहुसत फैल रहा है। आज भी अगर जिस शहर में गुनाह ज्यादा हो रहे हैं, जिस शहर में अगर इस तरीके से जराइम ज्यादा होते हैं, वहां भी लोग परेशान हाल हुआ करते हैं। अगरचे जाहिरी तौर पर सुकून नजर आएगा, लेकिन अंदर जब झांक कर देखिएगा सुकून नजर नहीं आता है। तो हजरत बायजीद बुस्तामी मुख्तसर देखिए है, आप फरमाते हैं जाओ, चले जाओ। लोग चले जाते हैं, सुबह जो है एक झोला लेते हैं, चादर डालते हैं, मुसल्ला लेते हैं, और लेने के बाद चल देते हैं। उसी दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। जो बदकार के औरत की कोठी थी, तवाइफा की कोठी थी, खादिमा नीचे आती है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा गुजरने के बाद जब देख रही है कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, मेरे लिए तो लोग लाइन लगाया करते थे, लेकिन आज क्या बात है, इतने घंटे गुजर गए हैं, कोई नहीं आ रहा है, तो खादिमा को भेजती है, नौकरानी को भेजती है। आने के बाद क्या देख रही है, एक सफेद रीश वाले बुजुर्ग है, और वो बुजुर्ग दरवाजे पे बैठे हैं, जिनको देखकर नौजवान दूसरी गली कूचों में अपने राह को पकड़ने रहे चले जा रहे हैं। अब वो जाकर बताती है, वो एक मोटा रकम दे करके, पैसा दे करके भेजती है, जाओ कह दो इन बुजुर्ग का ठिकाना जो है मस्जिद हुआ करती है, मदरसा हुआ करता है, यहाँ आपका काम नहीं है। आकर के जब वो पैसा देने लगती है कि हुजूर आप यहाँ से चले जाइए, आपके लायक ये काम नहीं है, आपका यहाँ बैठना नहीं है। आप फरमाते हैं, सुनो, जिस काम के लिए लोग आते हैं उसी काम के लिए आज मैं भी आया हूँ। इतना सुनने के बाद जाकर कहती है, अब मालिका के पास कहने के बाद उसने कहा जाओ कह दो बहुत ज्यादा फीस है। आकर कहती फीस बहुत ज्यादा है। बोले लो, जेब से निकाला, ये फीस अदा कर देती है। फीस अदा करने के बाद अब उसके बाद मालिकिन ने कहा कि अंदर बुला लो। अंदर जब जाते हैं और जाने के बाद आपने फरमाया इतना पैसा देने के बाद मेरा हक तेरे ऊपर कुछ होता है? उसने कहा पूरा हक है, इतने घंटे के लिए मैं आपकी हो चुकी हूँ। देखो नौजवानों, गौर करो, अल्लाह अल्लाह औलिया इकराम और बुजुर्गाने दीन कैसे कैसे तबले इस्लाम को फैलाए हैं, तब जाकर है। और उसी इस्लाम को आज हम पामाल कर रहे हैं, उसी इस्लाम को हम आज बचे पुष्ट डाल रहे हैं, उसी इस्लाम पे अमल करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज न सूरत से मुसलमान नजर आ रहा है, न सीरत से मुसलमान नजर आ रहा है, न अखलाक से मुसलमान नजर आ रहा है, न तहजीब व तबद्दुल से मुसलमान नजर आ रहा है। आप बताओ कितने मेले हैं, कितने झमेले हैं, कितने लोगों के मजमा में, कौन बता सकता है? जब तक आज जमाने में
नाम न लिया जाए, नाम न पूछा जाए, पहचान करना मुश्किल हो गया है। ये मुसलमान है, इधर वाला है कि उधर वाला है। हम लोगों के पास लोग आते हैं, बहुत से नौजवान आएंगे और हम कश्मकश में पड़ जाते हैं, पता नहीं ये किधर वाला है, हमारा वाला है, गैर वाला है। यहाँ तक के जब हमें शको शुबा मिटाना पड़ता है तो हम नाम पूछते हैं, तो कभी कभार मॉडर्न में नाम आज ऐसा रखा जाता है, उससे भी तमीज नहीं, उससे भी इम्तियाज नहीं है। एक शख्स आया, मैंने पूछा, नौजवान है, क्या नाम है तुम्हारा? पहचान में नहीं है। सूरत भी गैरों की तरह है, सीरत भी गैरों की तरह है, लिबास भी गैरों की तरह है। अब हाल ये है, उसने कहा मेरा नाम राज है। अब बताइए राज क्या समझेंगे आप, किधर का है? न इधर में समझ में आ रहा है, न उधर में समझ में आ रहा है। हमने सोचा चलो राज को इसे बता दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये किधर वाला है और कैसे है। तो मैंने सोचा चलो इसके बाप का नाम पूछ लिया जाए, हो सकता है बाप के नाम से पहचान में आ जाए। तो मैंने पूछा तुम्हारे बाप का क्या नाम? उसने कहा राजू। अब बताइए, सबका नाम है राजू है। अब मैंने कहा ठीक है, जाओ चाचा वचा पूछने पर फिर मालूम हुआ कि मुसलमान है। हाल ये है, नाम रखने के लिए कभी कभी जब बच्चा पैदा होता है सारे गूगल को सर्च कर डालेंगे। अगर उलमाए कराम अइम्मा कराम नाम बताए, ये तो मेरे फूफी का नाम था, ये मेरे दादा का नाम था, ये मेरा फलाने का नाम था, ये हमारे फलाने का नाम था। अल्लाह अल्लाह, आओ सीरत तैयबा को जब देखोगे, अल्लाह अल्लाह, एक एक घर में अगर सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मौला अली है, तो हजरत मौला अली के साहबजादे हो रहे हैं। अपने बच्चों का नाम अबू बकर रख रहे हैं, उमर रख रहे हैं, उस्मान रख रहे हैं। हजरत मौला अली के जो साहबजादे हैं, अल्लाहू अकबर, आप देखेंगे हर एक का नाम अली है। इम्तियाज करने के लिए किसी का नाम अली अकबर रखा गया है, किसी का नाम अली औसत रखा गया है, किसी का नाम अली असगर रखा गया है। अगर वो तो नहीं कहे कि मेरा नाम अली है, तो बच्चों का नाम क्यों अली है? सरकार ने फरमाया नाम वो रखो जिसमें बरकतें अल्लाह रखा। बंद मत करे ना। अब देखिए बात कहां से कहां चलेगी। वो है कैसे इस्लाम को फैला रहे हैं, और आज कहोगे कि नहीं मुसलमान तकलीफ में, हम और आप तो खुद तकलीफ पैदा किए हुए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपने आप को खुद न बदले, नहीं बदल सकता है। तो और आज हम ये परेशान है, वो परेशान है, क्यों? जब हमारे करतूत हमारे इस तरह अमल हो जाएंगे तो सरकार फरमाते हैं जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाता है। तो वो बायजीद बुस्तामी है, याद है आप जो मैं बयान किया? इसीलिए बायजीद बुस्तामी है, कैसे इस्लाम को फैला रहे हैं, कैसे कुरान के अहकाम को बता रहे हैं, कैसे रसूलुल्लाह के पैगाम को आम कर रहे हैं। आपने फरमाया इतना पैसा देने के बाद मेरा हक कुछ है? बोले हाँ, पूरा इतने घंटे के लिए। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है जाओ पहले गुस्ल करो, जाओ पहले नहा लो, और ये पाक कमाई के कपड़े हैं, गुस्ल के बाद इसे पहनना। अल्लाह जाती है, गुस्ल करती है, नहाती है, वो कपड़ा पहनती है जो हजरत बायजीद ने नजर किया था, और उसके बाद आती है। आप एक मुसल्ला आगे बिछाते हैं, एक मुसल्ला पीछे बिछाते हैं। बोले मेरा हक है तुम्हारे ऊपर, मैं जैसा जैसा करूंगा तुमको भी करना होगा। बोले हाँ हुजूर। अब आगे आप खड़े हो जाते हैं और नियत करने के बाद 2 रकात शुक्राने की अल्लाहु अकबर नियत करते हैं, सना पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर, रुकू वो भी रुकू कर रही है, वो भी रुकू कर रही है,
सुभान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ने के बाद समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, वो भी क़याम की तरफ फिर उस सजदे में जाते हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहते हैं, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद अर्ज करते हैं, मौला तेरी बिगड़ी हुई बंदी को, तेरे गुमराह बंदी को, तेरे इस बदकार बंदी को मेरा यहाँ तक लाना मेरा काम है मौला, आगे ले जाना तेरा काम है। हाय क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम, अज़मत वालिदैन, पैगाम हक, सुभान अल्लाह। आपसे फिर पूछा गया, अल्लाह अल्लाह, फिर किताबों में आया है वो औरत इस तरह दिल की दुनिया बदली है, इस तरह बदली है कि अल्लाह अल्लाह वो अल्लाह के वलिया में शामिल हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तासीर है जुबान की, कैसे ये तासीर कैसे आती है? 2 का दूध 4 करने में आती है, 3-5 करने में आती है? नहीं, ये तासीर आती है अल्लाह अल्लाह, अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल करने के लिए। आप सुने होंगे अक्सर कि बाबा फरीद का एक वाकया मिलता है। एक शख्स गरीब था और उसे जरूरत पड़ी बच्ची की शादी करने के लिए, गया वहां बाबा फरीद के यहाँ। उसने कहा कुछ इंतजाम हो जाए, इसलिए मजलिस लगी हुई थी, सूफिया कराम की मजलिस, औलिया कराम की। देखिए तसव्वुफ इल्म से अलग नहीं हुआ करता, बगैर इल्म का। आला हज़रत फरमाते हैं, सूफी बगैर इल्म मस्खरा शैतान है, बगैर इल्म का सूफी बनने वाला शैतान का मजाक होता है। इल्म ही वाला जो होता, आलिम ही जो होगा वो सूफी होता है, अलग अलग कोई उसका नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो आप फरमाते हैं जाओ मिट्टी का ढेला ले आओ, मिट्टी का ढेला ले आते हैं। उन्होंने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह इखलास 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ करके जब फूंक मारते हैं तो वो मिट्टी सोना बन जाती है। अल्लाह, सोना बनने के बाद खुशी खुशी गया और नुस्खा भी ये एक सीख लिया कि चलो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे, मिट्टी पर फूकेंगे, सोना बन जाएगी। अल्लाह। गया घर में अपनी बीवी को बोला, चलो चलो है बहुत अच्छा नुस्खा मैं लाया, अब तो माला माल हो जाएंगे, मालदार हो जाएंगे। आज यही होता है अक्सर औलियाए कराम के मज़ारों पे जाने के बाद, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार हो, चाहे मखदूम सिमना, अक्सर सुना गया है लोग दुआएं करते हैं जाने के बाद, तो यही दुआ करते हैं, मौला बिल्डिंगे हमारी हो जाए, मौला हमारे मकान चाटो हो जाए, मौला फॉर्चूनर गाड़ी हमारे पास हो जाए, मौला लग्जरी गाड़ी हमारे पास हो जाए, या ख्वाजा गरीब नवाज ये अता फरमा दीजिए। इस तरह दुआएं लोग किया करते हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले वहां जा करके अपने ईमान के खात्मे के लिए दुआ करो, सगायर कबार गुनाहों को बख्शवाने के लिए दुआ करो। ऐ मकबूले बारगाह है, ऐ बुजुर्ग आप मकबूले बारगाह है, आपके आस्ताने पर हम आए हैं, आप दुआ करें, अल्लाह आपके वसीले से हमारे हर जायज काम को पूरा फरमाए। लेकिन आज दुआ है, पीरों की दुआ हम ले रहे हैं, सबकी दुआ, लेकिन माँ बाप की दुआ लेने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप से पहुंचते हैं, सलाम कलाम बंद कर देते हैं लोग, यहाँ तक है सलाम कलाम तक बहुत ऐसे हैं, थोड़ी बात तकलीफ हो गई सलाम कलाम बंद कर देते हैं। नहीं भाई, सबसे बड़ी अजमत पीरों का भी मर्तबा है, लेकिन माँ बाप के बाद हुआ करता है। बुजुर्ग का मर्तबा है, लेकिन माँ बाप के बाद, अल्लाह रसूल के बाद अगर मकाम है तो वो है। तो हजरत बायजीद, बात लंबी चली जाएगी, हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा गया था आपको मकाम और मर्तबा कहां से मिला है? आपने फरमाया माँ की दुआ की बरकत है। वो कैसे? एक मर्तबा सख्त सर्दी है, ठंडक है, और ऐसे आलम में रात का सन्नाटा है और बर्फबारी हो रही, इतना शदीद सर्दी है, ठंडी है कि इस लिहाज से उठने को जी नहीं चाहता है। माँ ने कहा बायजीद बेटा प्यास लगी है, गिलास पानी ला। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद उठते हैं, गिलास लेते हैं और उसके बाद घड़ा से पानी निकाल कर ले जाते हैं। इतने पहुंचते पहुंचते क्या देख रहे हैं कि माँ की आंख लग चुकी है, माँ की आंख लग चुकी, और माँ की आंख लगने के बाद अब सोच में पड़ गए अगर जगाता हूं तो नींद में खलल पड़ जाएगी माँ की। अल्लाह, इसलिए कि बुजुर्गों को नींद बहुत देर में आया करती, मुश्किल से आती है, जल्दी नहीं आती है, और जवानों को जल्दी नींद आया करती है और देर में उठते भी हैं, लेकिन वो जल्दी नींद नहीं आती है, जल्दी उठ भी जाया करते हैं।
آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ کھڑے ہونے کے بعد جب تہجد کے وقت آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ باعزیز بیٹا جو ہے ہاتھوں میں پانی لے کر گلاس لے کر کھڑا ہے، ماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جب اس گلاس کو اٹھایا ہے، تاریخ میں ہے کہ اس گلاس کے ساتھ ٹھنڈی کی وجہ سے چمڑی بھی ساتھ میں آ گئی۔ تکبیر، نعرے رسالت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضور سید علی میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، آل رسول، اولاد رسول، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے کہ آل رسول اولاد علی حضرت علامہ سید عالم میاں صاحب قبلہ دامت اللہ علینا رونق اسٹیج ہیں۔